ابھی بھی آپ کا جو شور اور آپ کا جو جنون اس کو سلام پیش کرتا ہوں. خان لوت دیر تیمرگاہ میں عوامی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جلسہ گاہ کے مناظر جہاں پر عوام کا ایک جمع غفیر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیوں اور خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کے طرز قیادت سے بالکل خوش اور مطمئن ہے. اور عدم اعتماد کے حوالے سے جب اس جلسہ گاہ کے منتظمین نے نعرے لگائے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر اعتماد ہے تو عوام کے اس جمع غفیر نے باآواز بلند ہاتھ اٹھا کر وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. اس سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی خطاب کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے اور اس کے علاوہ وزیر مواصلات مراد سعید نے بھی خطاب کیا اور اپوزیشن کی موجودہ صورتحال اور ان کی بوکھلائی ہوئی اس سچویشن پر عوام سے جب رائے لی تو عوام الناس نے بنا اور اس ملک کا جب یہ پاکستان بن رہا تھا تو اس کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ماشاءاللہ. اب یہ سننا ہے، آپ نے مطلب سمجھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک فلسفہ ہے. جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا اور کوئی خدا نہیں، اور اگر میں کسی اور خدا کے سامنے جھکتا ہوں وہ بہت بڑا گناہ شرک کرایا جاتا ہے، شرک ہے. تو نوجوانوں یاد رکھیں لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے. ایک غریب سے غریب انسان بھی ہوگا جب وہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں لوگ اس کی عزت کریں گے. اور بڑا امیر ترین پیسے والا آدمی جب وہ کسی کے سامنے جھکتا ہے کوئی عزت نہیں کرتا اس کی. تو میرے نوجوانوں اب یہ ابھی میری جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا. میں تو جنرل باجوہ نہیں کہہ رہا لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا، عوام نے اس کا نام. اچھا اب سنیں دیکھیں ابھی ڈیزل کے اوپر بعد میں آتے ہیں. ابھی آتا ہوں. سنیں دیکھیں نوجوانوں مجھے موقع نہیں ملتا آپ سے ہر روز بات کرنے کا، تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان جب کسی کے سامنے جھکتا ہے وہ اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے، غیرت کھو بیٹھتا ہے. اور جب ایک قوم کسی کے سامنے جھکتی ہے اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس ملک کے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں کرتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میں آپ کو تاریخ کا واقعہ بتا رہا ہوں، 628 اور 629 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سپر پاورز تھی وقت کی، ایک روم کی سپر پاور اور دوسرا ایران میں سپر پاور تھی. دنیا ان دونوں سپر پاورز کے پیچھے میں بٹی ہوئی تھی. تو مسلمان تو تھوڑے سے تھے، ابھی مسلمان تھوڑے تھے، چند ہزار تھے. تو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم لیڈر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے
सच का पैगाम लेके आया हूं। अगर तुम उस पैगाम के ऊपर अमल करोगे, ये तुम्हारी बेहतरी है। अगर तुम नहीं करोगे, तुम्हारी तबाही है। अब नौजवानों सुनिए, वो सुपर पावर्स किधर थोड़े से मुसलमान, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम हमेशा के लिए हमें दिया कि आप थोड़े भी हो, आप कमजोर भी हो, लेकिन जब तक आप में गैरत है, दुनिया आपकी इज्जत करेगी। उन्होंने दोनों सुपर पावर के सामने हाथ नहीं फैलाया इमदाद मांगने के लिए, कर्जे मांगने के लिए। उन्होंने उनको पैगाम दिया, और दुनिया की तारीख इस चीज की गवाह है कि 8-9 सालों के बीच में दोनों सुपर पावर्स मुसलमानों के सामने घुटने टेक देती हैं। ये दुनिया की तारीख में है। तो हमें अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में कि अपने नबी की सुन्नत पे चलो, उसके रास्ते पे चलो। तो नौजवानों, आज सबसे पहला मेरा पैगाम यह है कि सिर्फ एक खुददार कौम की दुनिया इज्जत करती है। वो कौम जो अपनी इज्जत नहीं करती, उसकी दुनिया इज्जत नहीं करता। और जब से मैंने सियासत शुरू की 25 साल पहले, मेरा मंशूर देख लो, मैंने 3 चीजें कही कि सबसे पहले हम पाकिस्तान को एक खुददार कौम बनाएंगे, अपने पैर पे खड़ा करेंगे, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर अमल करेंगे कि सिवाय अल्लाह हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। दूसरा, इंसानियत, कि हम अपने मुल्क को एक फलाही रियासत बनाएंगे उस तर्ज पे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में दुनिया की तारीख में पहली दफा फलाही रियासत बनाई थी। और तीसरी चीज कि हम अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का कानून लेके आएंगे, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आएंगे। ये 3 चीजें मेरे मंशूर का हिस्सा था 25 साल पहले, और ये मंशूर हमने मदीना की रियासत से लिया था, जिधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 उसूलों के ऊपर मदीना की रियासत को खड़ा किया था। तो आज सबसे पहले मेरे ये जो 3 स्टूजेस हैं, ये जो 3 इकट्ठे हो गए हैं, ये तीनों वो लोग हैं जो 30 साल से 35 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। अगर आज हमारे हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत नहीं, इन तीनों की वजह से, क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क को मकरूज किया। इन्होंने जाके जो भी बड़े बड़ी पावर थी उनके सामने झुके। इनके पिछले 2008 से लेके 2018 तक 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। हमारे कबाली इलाके में 400 ड्रोन अटैक हुए, हमारे शहरी मारे गए, हमारी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, बेकसूर लोग मारे गए। ये 2 जरदारी और नवाज शरीफ जो इख्तियार में थे, एक दफा इन्होंने मजम्मत नहीं की, एक दफा इन्होंने ये नहीं कहा कि ये सारे इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है कि आप एक मुल्क आपकी मदद कर रहा है, उसी को आप बमबारी कर रहे हैं। और आज मेरे दीर के नौजवानों, ये क्यों नहीं इन्होंने मजम्मत की? क्योंकि इनके अरबों
अरबों अरबों रुपए और असासे बैरूनी मुल्कों में पड़े हुए हैं, और उनकी वजह से इन्होंने एक दफा अपने शहरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसकी मजम्मत भी की। कौन मजम्मत कर रहा था, कौन मुजाहरे कर रहा था? आपकी जमात तहरीक इंसाफ। हम सड़कों पर निकले हुए थे। और अभी शाह महमूद कुरैशी ने बात की, हिंदुस्तान से मिसाइल आया। यही हिंदुस्तान जब नवाज शरीफ इक्तदार में था तो नरेंद्र मोदी बार बार पाकिस्तान की फौज को दहशतगर्द कह रहा था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दहशतगर्दों का सरबराह कह रहा था। एक दफा नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि उसने अपने फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन को कहा कि तुमने कोई स्टेटमेंट हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं देनी। और ये क्यों था? क्योंकि जब इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, मेरे दीर के नौजवानों ये सुन लो, जिस जमात के भी सरबराह का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो वो कभी आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं कर सकता, यानी वो फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं बनाएगा जिसमें वो अपने अवाम की हिफाजत करे, उनके हुकूक की हिफाजत करे। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर के बाद डीजल पे आने लगा हूं, लेकिन उससे पहले इन्होंने जो हरकत की अभी इस्लामाबाद में, उसके बाद में आता हूं। लेकिन सबसे पहले देखिए, मैं सिर्फ, मेरा काम है, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बाप होता है। आप जिस तरह मैं अपने बच्चों की तरबियत करता हूं, मेरा काम है आपकी तरबियत करना, आपको एक अजीम कौम बनाना। यह जरूरी है कि आप समझे कि यह मुल्क बना किस लिए था। तो ये तब मुल्क जब बनाया गया था तो एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर था जिसका नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना था। हम उसको लीडर मानते हैं, और वो सादिक और अमीन था। वो एक ऐसा लीडर था जो दलेर था, जो उस वक्त अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल के बात करता था, और उसने अपनी जान की बाजी लगाई हमें आजादी दिलवाने के लिए। और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को अब उधर लेके जाएंगे। कभी भी ये याद रखे मेरी पाकिस्तान की कौम कि क्योंकि हमारा नस्बुल ऐन जब शुरू किया था, इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन था, कभी मैं ना कभी किसी के सामने झुका हूं, और इंशाअल्लाह कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। खड़ा है कोई मकान, ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। अब मैं एक बात अपनी फौज के ऊपर करना चाहता हूं। अभी डीजल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने ये कहा कि जब हम इक्तदार में आएंगे तो हम इदारे को ठीक करेंगे, मतलब कि हम फौज को ठीक करेंगे। मुझे यह बताओ कि आज अगर पाकिस्तान बचा हुआ है, उसकी असल वजह यह है कि हमारे पास एक मजबूत फौज है। आज आप नौजवानों मुसलमान दुनिया में देखें, मुसलमान दुनिया में कितना बड़ा अजाब आया हुआ है, तबाह हुए मुसलमान मुल्क।
इराक देखें, सीरिया देखें, लिबिया देखें, सोमालिया देखें, हमारे अफगानिस्तान देखें क्या हुआ। तो जब एक मुल्क के पास ताकत नहीं होती अपनी हिफाजत करने के लिए, वो आजाद नहीं रह सकते। इसलिए आज अगर हमारे दुश्मनों ने हमारे मुल्क को तोड़ा नहीं, जो उनका प्रोग्राम है 3 हिस्से में तोड़ने का, उसकी वजह हमारी फौज है। एक ताकतवर मुसलमान दुनिया में सबसे ताकतवर फौज है। अब उसके पीछे कौन पड़ा हुआ है? उसके पीछे अब लोग नहीं नादान, गए सब जान, गए इमरान खान। उसके पीछे पहले तो ये जो डीजल ने कहा है कि हम इदारे को ठीक करेंगे। आप कैसे ठीक करेंगे? आपने तो जिस इदारे को हाथ लगाया है, आप तीनों ने, 3 स्टूजेस ने, आपने सारे इदारे तबाह कर दिए। आपने तो अदालतों के ऊपर अटैक किया, आपने तो जजेस को खरीदा, आपने तो डंडों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भगाया, आपने तो टेलीफोन कॉल कर करके जजों से फैसले लिए, आपने तो मीडिया के ऊपर लिफाफा जर्नलिज्म शुरू की, रिश्वत दी, आपने तो ये जो बाहर बैठा हुआ है इस मुल्क का सबसे बुज़दिल झूठा आदमी, कहते हैं, मुझे ये भी कहते हैं कि जी उसको भगोड़ा ना कहो। इतना वो भगोड़ा भी है और वो झूठा भी है। पहले झूठ बोल के गया कि मुशर्रफ के मैंने कोई 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अब झूठ बोल के गया है कि जी मेरी तो तबीयत बहुत बुरी है, मैं तो मरने लगा हूं, अगर मैं बरतानिया ना गया तो मैं मर जाऊंगा। तो तब गया तो उसने, सुने जरा, उसने छांगा मांगा की सियासत शुरू की, उसने सियासतदानों की कीमतें लगाई, उस आदमी ने ये लिफाफा सहाफत शुरू की, उस आदमी ने आर्मी चीफ को, आसिफ नवाज जंजुआ को BMW गाड़ी से रिश्वत देने की कोशिश की। तो वो आज फौज को ठीक करेंगे। वो आदमी है जिसने काठमांडू के नेपाल में नरेंद्र मोदी से छुप के मिल रहा था अपनी फौज के खिलाफ, जिसने नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया जो कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा था। क्या वो ठीक करेगा फौज, या वो डीजल जिसने अमेरिकन एम्बेसडर के पास बैठ के कहा, एन पैटरसन के, उसने अमेरिकन एम्बेसडर को कहा कि मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं, मुझे भी एक मौका दे दो। और या वो आसिफ जरदारी पाकिस्तानी फौज को ठीक करेगा। मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी उसने, आसिफ जरदारी ने, सुने जरा, आसिफ जरदारी ने एक मेमोगेट हुआ था, अमरीकनों को खत लिखता है कि जी मुझे अपनी फौज से बचा लो। क्या वो फौज को ठीक करेगा, या वो छोटा शोबा शरीफ? अब ये शहबाज शरीफ कहता कि इमरान खान ने बड़ा गलत किया कि वो यूरोपियन यूनियन को उसने उनकी मजम्मत की। शहबाज शरीफ, तुम ये जो टाई कमीज और सूट पहन के अंग्रेजी बोल के तुम समझते हो कि ये शहबाज शरीफ भी अपनी टाई पहन के उनको कहता है, सर मुझे मौका दे, मैं आपकी बड़ी अच्छी खिदमत करूंगा। तो ये जो फजलुर रहमान यानी कि डीजल ने जब इसने ये कहा कि मैं इदारे को ठीक करूंगा इक्तदार में आके, हम करेंगे, यानी कि
یہ ڈاکوؤں کا گلدستہ فوج کو ٹھیک کرے گا. ایسے خواب بھول جاؤ. میں ان ساروں کو ایک پیغام دیتا ہوں, میں ان سب کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے لگا. آپ نے وہ کیا جو کپتان اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ عدم اعتماد میرے پہ کریں. میں یہ دعا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جی دھرنا دینے آ رہے ہیں, گورنمنٹ اگلے مہینے جا رہی ہے, گورنمنٹ اس سے اگلے مہینے جا رہی ہے. شکر ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کر کے ایک ہی دفعہ مجھے موقع دیا کہ میں ایک گیند سے 3 وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا. اچھا, اور انشاءاللہ ایک دن پہلے عدم اعتماد سے یہ ساری قوم دیکھے گی ڈی چوک میں انسانوں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں. دیکھیں اچھا, ہاں اچھا, ایک منٹ آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے؟ ایک منٹ سن لیں میں کیا کہنے لگا ہوں. نواز شریف بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے صدر کے ساتھ, ہاتھ میں اس نے پرچی پکڑی ہوئی ہے اور اس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. پرچی پکڑ کے وہ گھبرایا ہوا بیٹھا ہے کہ اس کا آقا ناراض نہ ہو جائے. کہیں ناراض ہو گیا تو اس کا سارا پیسہ اتنی محنت سے جو چوری کیا ہوا ہے بار وہ نہ کہیں پکڑا جائے. تو اب میں وہ بلاول بچے کی کیا بات کروں. اتنا پیسہ خرچ کر کے اسلام آباد پہ آیا, وہ بیچارے سندھ سے لوگوں کو پیسے دے دے کے لے کے آیا وہاں اسلام آباد, اور ادھر لوگوں سے پوچھے جی اس کا کیا پیغام تھا, انہوں نے کہا جی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اچھا سنیں آپ, دوسری چیز دیکھیں, میں بعد میں اچھا, یہ انشاءاللہ یہ جب تک بلاول سیاست چھوڑے گا تو نئے الفاظ نکلائیں گے, جس طرح کانپیں ٹانگ رہی ہے, چینی اگ رہا ہے, اور ایک اور وہ کیا بارش آتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں, کیونکہ جب آپ ایک لیڈر کو زبردستی بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ جناب اس کے نانا صاحب لیڈر تھے تو اس کو بھی آپ نے بنایا, یہی ہوتا ہے پھر کانپیں ٹانگتی ہیں. اچھا جی سنیں ذرا, دوسری چیز بعد میں دوسری چیز نوجوانوں, میری جو سب سے زیادہ کوشش ہے, پہلے سن لیں بعد میں آؤں گا, سب سے زیادہ کوشش ہے کہ مدینہ کے ریاست کے طرز پہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بناؤں, اور مجھے اللہ کا کرم ہے کہ اس راستے پہ ہم نکل گئے ہیں. نوجوانوں, اب آپ کے یہاں سے دیر سے بڑے لوگ باہر کام کرتے ہیں, ان سے کبھی پوچھے کہ کوئی دنیا میں اس وقت ملک ہے جدھر ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروائیں. ایک ملک بتا دیں. یہ انشاءاللہ دنیا کے لیے پاکستان ایک مثال بنے گا.
ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں, ابھی پیسے نہیں ہیں, ابھی تو ٹیکس اکٹھا ہونا شروع ہوا ہے, لیکن ابھی سے ہم نے وہ قدم اٹھایا ہے جو امیر ترین ملک بھی نہیں کر سکتے کہ ہر اپنے خاندان کو آپ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکے. اور یہ ہمارا سفر ہے اس طرف, اس ملک کو ایک انسانیت کا نظام لا کے ایک ایسی فلاحی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا ہماری مثال سے سیکھے گی. ہم نے نوجوانوں کامیاب پاکستان میں 20 لاکھ غریب خاندانوں کے لیے 5 لاکھ روپے کا قرضہ سود کے بغیر, 20 لاکھ روپیہ گھر کے لیے سود کے بغیر قرضہ, اور ایک جگہ ٹیکنیکل ایجوکیشن, اور جو کسان وہ اپنی زمین پہ پیسے لگانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے 5 لاکھ سود کے بغیر قرضہ رکھا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ مہنگائی ہے, عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے, مہنگائی کا دنیا میں سمندر آیا ہوا ہے, 40 سال کے بعد امریکہ جیسی جگہ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. اس دور میں ہم نے 2 کروڑ خاندان کو ہم نے دینا شروع کیا ہے احساس راشن, یعنی جا کے اپنے کریانہ سٹور سے آپ 30% آپ کو رعایت ملے گی آٹا, چینی اور گھی کے اوپر. 2 کروڑ خاندان کو ہم دے رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات, اگر آپ کے دیر سے لوگ دبئی ہیں, یاد رکھیں دبئی میں, یو اے ای میں زمین سے تیل نکلتا ہے ان کے, لیکن کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا, جو کہ دنیا میں اس وقت تیل سب سے مہنگا ہوا ہے, آج پاکستان میں دبئی سے سستا تیل بک رہا ہے, ڈیزل اور پٹرول. فضل الرحمان اور پٹرول دبئی سے سستا ہے. فضل الرحمان کو میں چاہوں گا ذرا کبھی کسی پیٹرول پمپ پہ جا کے خود ہی چیک کر لے کہ ڈیزل کی قیمت کیا ہے. اچھا سنیں آپ, اور آخری چیز, یہ 2 اور میں نے باتیں کر دی ہیں. اور قانون کی بالادستی کا مطلب جو مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے کہا تھا یہ نوجوانوں اپنے کانوں میں ڈال لو کہ میں نے جب یہ انصاف کی تحریک شروع کی تھی میں اپنے نبی کی سنت پہ چل رہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں, جس معاشرے میں انصاف نہیں, اور انصاف کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کے لیے قانون, انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی, جدھر جب طاقتور ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی, صرف جب کمزور غریب چور جب چوری کرتا تھا اس کو جیل میں جب ڈالتے ہو قوم تباہ ہو جاتی ہے. آج جو میرا مقابلہ ہے یہ ان 3 ڈاکوؤں سے, یہ تینوں ڈاکوؤں سے میرا مقابلہ ہے. اور جس طرح میں پھر اللہ تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے عدم اعتماد کر دیا, یہ میری نشست میں آ گئے ہیں, ایک ان سوئنگ یوکر سے تینوں کی بٹیں انشاءاللہ گراؤں گا. یہ جو 3 ڈاکو ہیں یہ میرے سے کیا مانگ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں میرے سے؟ NRO. شاباش, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میری نوجوان قوم میں بہت شعور ہے, میں داد دیتا ہوں آپ کو. میرے کہتے ہیں جی عمران خان ہم تمہاری گورنمنٹ گرا دیں گے اگر تم ہمارے کرپشن کے کیس بند نہیں کرو گے. میں ان کو کہتا ہوں گورنمنٹ گرانی تو میرے لیے آسان چیز ہے, مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. میں تمہارے سامنے پالیٹکس نہیں کر رہا, میں تمہارے خلاف جہاد لڑ رہا ہوں. آپ
आपने, मेरे नबी ने कहा कि ताकतवर डाकू जब चोरी करता है आप उसको सजा नहीं देते, मुल्क तबाह हो जाता है। अल्लाह ने इस मुल्क को हर नेमत से नवाजा है, हर चीज दी है, लेकिन क्यों हम उतना अजीम मुल्क नहीं बन सके जो हमें बनना चाहिए था? क्योंकि इस मुल्क में बदकिस्मती से अब तक जो बड़ा डाकू चोरी करता है, हमारा सारा इंसाफ का निजाम उसको सजा नहीं दे सकता। सिर्फ जेल भरे हुए हैं बेचारे गरीब लोगों से जो मजबूरी में चोरी करते हैं। इस निजाम के खिलाफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। इंशाअल्लाह मैं अपने अल्लाह के सामने वादा करके आया था कि अल्लाह, जब तक मेरे में जान है मैं इस मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ूंगा। ये जो डाकुओं का टोला इकट्ठा हो गया है, अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज। अब ये तीन चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, और इंशाअल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। अच्छा, आखिर में नौजवानों, अच्छा अभी आता हूं। अच्छा, सुने अब तीन चीजें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में तीन उसूल बनाए थे: खुददारी, इंसानियत और इंसाफ। ये तीन उसूलों के ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई थी। मुझे एहसास हुआ, जब मैं हुकूमत में आया, मुझे एहसास हुआ कि हमारे लोगों को समझ ही नहीं है कि सीरत नबी क्या थी। हमारे बच्चों को सही माने में समझ ही नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी। इसलिए मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। स्कूल के बच्चों के अंदर हम सीरत की क्लासेस देंगे, हम इनकी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करवाएंगे, हम इनको टीवी पे प्रोग्राम्स करेंगे ताकि मेरे नौजवानों को पता चले कि सीरत नबी क्या है। तीन चीजें, क्योंकि ये याद रखें, जब अल्लाह कहता है कि नबी की सुन्नत पे चलो, वो हमारी बेहतरी के लिए कहता है। नबी को अल्लाह ने खिताब रहमतुल आलमीन का दिया है। सब इंसानों के लिए हमारा नबी रहमत लेके आया था। तो जो भी इंसानी माशरा हमारे नबी के पैगाम पे चलेगा वो ऊपर आ जाएगा। अब मैं आखिरी जो आपको बात समझाने लगा हूं, ये गौर से सुने। तीन चीजें हमारी जिम्मेदारी रियासत की, एक जिसके ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई थी वो आपकी जिम्मेदारी है, और वो कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इसका मतलब क्या है? अल्लाह हमें हुक्म करता है, नौजवानों, अल्लाह हमें हुक्म करता है कि तुम, कुरान की पूरी आयत है कि तुम्हें मैंने सबसे अजीम कौम बनाया, तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो, अच्छाई के लिए जहाद करते हो, और बुराई के खिलाफ खड़े होते हो और बुराई के खिलाफ जहाद करते हो। यानी कि जब अच्छा बुरा होता है तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है,
अब मैं आपको मिसाल देता हूं। आजकल ये सारी ऑपोजिशन, इनके लोग थैले नोटों के लेके फिर रहे हैं। सारी कौम के सामने 15-15, 20-20 करोड़ हमारे एमएनएस को कह रहे हैं कि अपना जमीर बेच दो। ये सारी कौम के सामने तमाशा हो रहा है कि ये हुकूमत कैसे गिराएंगे। नंबर तो है ही नहीं इनके पास, ये कैसे गिराएंगे। ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एमएनएस के जमीर को खरीदो। 15-20 करोड़ की थैलियां लेके फिर रहे हैं। अब मैं नौजवानों आपको बताऊं, मेरा इतना टाइम गुजरा है मगरिब में, बरतानिया में मैं यूनिवर्सिटी भी गया, क्रिकेट भी खेलता था। जो हमने जमहूरियत ली वो बरतानिया से ली। बरतानिया के अंदर कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई किसी को पैसा दे के उसका जमीर खरीदेगा, किसी एमएनए का, एमपीए का। तस्वर भी नहीं है। वो कौम, अगर उनको ये शक भी पड़ जाए कि किसी पॉलिटिशियन ने अपना जमीर बेचा है, वो सारे माशरे में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि वो अमर बिल मारूफ पे चल रहे हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखो कि इन चोरों ने या इस मुल्क में 35 साल हुकूमत करके हमें अच्छे और बुरे की तमीज खत्म कर दी है। कहीं दुनिया के महज़ब माशरे में कौन सा पॉलिटिशियन अपना जमीर बेचता है पैसे लेके? उसको तो सिर्फ ये ना हो कि माशरे में शक्ल ना दिखा सके, उसको तो जेल में डालें। सेनेट का इलेक्शन हुआ, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा एक तहरीक इंसाफ के मेंबर को पैसे देता हुआ, उसकी वीडियो आ गई। ये वीडियो अगर मैं जो जानता हूं किसी भी मगरबी जमहूरियत में आती, वो सब जेल में होते और उसको सजा मिली होती। तो ये मेरा नौजवानों, हमें अल्लाह की इस जो हुक्म है, इस आयत पे हम सबको चलना चाहिए। मैं जो डीक चौक पे लोग बुला रहा हूं एक दिन पहले अदम एतमाद से, मैं अपनी कौम को सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि इनको बताने के लिए, ये जो डाकू 3 इकट्ठे हुए 3 स्टूडेंट्स, इनको ये बताने के लिए कि हमारी कौम जिंदा है, हमारी कौम अमर बिल मारूफ पे खड़ी है। हम अच्छाई को अच्छाई समझते हैं और बदी को हम सब ने मिलकर खत्म करना है इस माशरे से। नौजवानों, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। करप्शन में अब जो शहबाज शरीफ है, इसके चपरासी के बैंक अकाउंट में 4.25 अरब रुपया निकला है। 4.25 अरब रुपया का मतलब 375 करोड़ रुपया इसके चपरासी के, मकसूद चपरासी के अकाउंट में निकला है। 16 अरब रुपया, 1600 करोड़ रुपया इसके नौकरों के अकाउंट में निकला है। ये अगर किसी भी मगरब मुमालिक में इस तरह होता, इसलिए वो मुल्क हमारे से आगे हैं, वो ज्यादा अल्लाह का हुक्म फॉलो कर रहे हैं। वहां किसी की, उस सियासतदान की जुर्रत ना होती, किसी पब्लिक में जाता, अब तक जेल की सजा हो चुकी होती। यहां जनाब वो अपनी नेल्सन मंडेला की शक्ल बना के तकरीरें कर रहा है, असेंबली में जाके एक अच्छा, जब नैब की अदालत में जाना होता है तो कमर में दर्द हो जाती है, जब असेंबली में तकरीर शुरू करता खत्म ही नहीं करता, कमर ठीक होती है वहां। जब अदालत में जाना होता है लंबी लंबी डेट्स लेता है। तो नौजवानों मेरी बात सुन लें, कभी भी अल्लाह की बरकत उस माशरे में नहीं आएगी जिधर जुल्म हो। कभी अल्लाह की बरकत उस माशरे में नहीं आएगी जब तक जो उसने हुक्म दिया कौम को कि आप अच्छाई के साथ खड़े हो। जब आप देख रहे हैं माशरे में
बुराई ऊपर आ रही है, आप सबके ऊपर अल्लाह फर्ज कर देता है कि उसके खिलाफ जहाद लड़ो। तो ये जो इस वक्त ये सारे 3 डाकू इकट्ठे के कोशिश कर रहे हैं, मैं इनको आज पैगाम देना चाहता हूं कि आप डी चौक में इंशाल्लाह देखेंगे अवाम का समुंदर, और वो सिर्फ एक पैगाम देने आएंगे कि हम अल्लाह के हुक्म पे खड़े हैं, हम अमर बिल मारूफ पे खड़े हैं। हम ये जो तुम कोशिश कर रहे हो लोगों के जमीर खरीदने की 20-20 करोड़ रुपए से, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम चोरों को नहीं छोड़ेंगे। वैसे मैं अभी तक मेरे एमएनएज ने मुझे सब ने बताया है कि उनको क्या क्या पैसा ऑफर कर रहे हैं, मुझे आके बता देते हैं, सब मुझे बता देते हैं कि कौन सा इनके डाकुओं सिंडिकेट का, इनका माफिया के जो लोग उनको मिल रहे हैं। मैं उनको सबको कहता हूं कि अगर पैसे तुम्हें दे रहे हैं तो ले लो, पैसे दे रहे हैं रख लो, 20 करोड़ रुपया अगर दे रहे हैं रख लो। कोई यतीम खाना खोल देना, कोई लंगर खाना खोल देना, कोई गरीबों की मदद कर देना, कोई स्कूल खोल देना, क्योंकि हराम का पैसा है, ले लो इनसे, लेकिन कभी अपना जमीर ना बेचना, क्योंकि इज्जत जिल्लत देने वाला खुदा है, रिस्क देने वाला खुदा है। जो भी अपना जमीर बेचता है ऊपर वाला उसे कभी माफ नहीं करता। मैं आखिर में दीर के लोगों, जिस तरह का आज आपने शानदार इस्तकबाल किया है, दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। जो आपने शऊर दिया है, मैं आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूं, जिस तरह का आप में शऊर है। और इंशाअल्लाह ये जब अब आप सब देखेंगे कि ये जो मैच होगा पार्लियामेंट के अंदर अदम एतमाद का, आप देखेंगे कि वो मैच जब आपका कप्तान जीतेगा तो तब मैं इन डाकुओं से क्या करता हूं। पाकिस्तान का क़याम ला इलाहा